शाहरुख सर का मलांग इज 2। नंबर 2 के लिए नेक्स्ट ईयर इज गुड। इनको बस फैमिली की तरफ ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट ईयर। और शाहरुख सर स्पेशली, वन रेमेडी फॉर हिम रादर वुड बी नेक्स्ट ईयर बेड साइड कीप योर चाइल्डहुड पिक्चर। सेकेंडली दुआ, जो उसका नंबर कॉम्बिनेशन है, ये बहुत लक अपने फादर के लिए लाने वाली है। सो शी इज जस्ट कम एंड लॉट ऑफ लक इज कमिंग his way. And Deepika Padukone, like I've said it also in previous pods, for her 27 is going to be fantastic. Raha का नंबर है, नंबर 8 she is. It works as a stop loss for the father. जब भी नंबर 8 का बच्चा आपके घर में पैदा होता है, हम इतनी बैड थिंग बोलते हैं नंबर 8 के लिए, बट नंबर 8 अपने फादर के लिए स्टॉप लॉस लाता है। अगर उसका लॉस चल रहा है ना, the child will bring stop to it. So number 1 के लिए 2026 ego will be either their teacher or it will be their jailer. So मुलांग 2 वालों को जो है 2026 में set your boundaries and stop being a dustbin. नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा साल है. So you have to just be focused. अगर ये लोग rigid रहेंगे ना, they will get this, you get the spots on your face, on your cheeks, they will get the freckles, they will get that tummy weight. Number 4 के लिए 2026 is a homecoming year. जो भी तकलीफें थी, जो भी चल रहा था, कलेश, यहाँ से बम गिर रहा है, वहाँ से कुछ हो रहा है, यहाँ से थिंग्स आर नॉट हैपनिंग टुगेदर, ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। जस्ट सब्र रख लो। तो मुलांग नंबर 5 के लिए जो है, इनका ये जो साल है, दे हैव टू बी केयरफुल ऑफ ज़बान संभाल के। सो इनका जो कर्म है, इनकी वोकैबुलरी होगी, ईदर इट विल बी अ गेम चेंजर या तो गेम ओवर। Number 6 people go for the next year. They have to start saying no. They have to put themselves first. Treat themselves well. For number 7 people, overthinking is not intelligence. It's a curse. ये लोग बहुत overthink करने वाले हैं। Number 8 को 2026 struggle को जो है उनके, take it as a वनवास। नंबर 9 के लिए नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी, आपका जो गुस्सा है वो यहाँ रहने वाला है। सो मेक श्योर ये आपकी तरक्की देगा या आपकी कमजोरी बनेगा। A lot of people may not believe in what we speak and what we are going to speak about today, but I am a firm believer. I respect everybody. And I'll tell you, I'll give you one instance why I believe in Dr. Alfia and whatever she says. Because she had told me before going for Rise and Fall that लग रहा है तुम तीसरे या चौथे हफ्ते तक रहोगे, but she was in touch with my mother, which not many people know. Actually, only my close friends know. And she gave my mother a remedy, which my mother did every week. I was a finalist. So I do believe in whatever she says. And thank you for joining us for yet another episode of the Unspoken Podcast with me, Nayan. Thank you. You know that after that, I have been constantly in touch with you for all my angst, happiness, celebration, पैसे अटके पड़े, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वास्तु करना है घर का, क्या करे. Thank you for being such a kind person. And I know a lot of people will do your podcasts and it's a lot professional, but for me it's become very personal with you because you've helped me at a time when I've gone through some of my highest highs and biggest lows. So thank you for doing this. Thank you so much for inviting me, Nan. It's always a pleasure to meet you. It's lovely meeting you again. And आज हम बातें करेंगे about 2026. I am looking forward to that year because 2025. Every year, Alifia, I cannot tell you this. Every year when my friends would be like, I'm so happy this year is over, and those posts would come on Instagram. And I would be like, but this year has gone so well for me. This year has gone so well for me. I don't know why people are crying. This year, I want to cry. Saying, हाय 2025 कैसा ही गया है. मतलब बुरा नहीं गया है, but because I'm a Taurian, मेरे अनुसार नहीं गया है. It's that. I'm like, sometimes people say that so many good things have happened to you. People are reminding me, but I'm like, yeah, but it didn't happen according to me. I don't know, maybe. But Taurians के लिए अच्छा गया है ये साल। अच्छा गया है वैसे, हाँ। ओह वाओ, इससे बुरा हो सकता था। इससे बुरा और क्या होता? इससे बुरा हो सकता था अगर हमने हमारे स्वीटनेस हमारे टंग में बेकरार नहीं रखी होती, इससे बुरा हो सकता था। That I agree. Yeah. That I totally agree. That, but if you have to sum up 2026, what are the good, bad, ugly that possibly can happen in 2026 before we move on to the Mulangs? Okay, so 2026 when I see at India, okay, मतलब India perspective, हम खर्चा बहुत करने वाले हैं। शॉपिंग, ट्रैवल, टूरिज्म बहुत बढ़ने वाला है। प्रॉपर्टी फॉर फर्स्ट 3 months नॉट सो ग्रेट, बट आफ्टर मार्च इट विल बी वेरी गुड। अगेन दैट विल बूम अप।
Gold definitely is going to increase. Silver, जितना पैसा है खरीद लो. Silver. Yes. And in fact, gold will do much better in 28 because that will be number 3 year. 26 is number 1 year. So 3 is Jupiter, that's a gold year. It is going to cross at least 2.5 तक. 0.5 2020 lakhs. at least 2 तो क्रॉस करना ही है, इसी साल करने वाला है. 26 में only we will see. But 2028 is going to be fantabulous for gold. And silver के लिए 2027 is going to be more fantabulous. तो it's the best time. अगर है पैसे, कहीं मत इन्वेस्ट करो, सिल्वर खरीदो और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दो. Not best. बेस्ट प्लेस टू कीप सिल्वर. मून का जोन है, मून का है सिल्वर, तो घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर आपकी कहीं जगह है तो वहाँ पर रख दो. एक रेमेडी भी हो जाएगी सिल्वर की. एंड इट विल गेट यू लॉट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी ऑल्सो. तो 2-3 रेमेडी हो जाएगी वो रेमेडी करके. देन पॉलिटिकली इंडियन, अगर इफ आई टू सी वर्ल्ड वाइड, there will be changes, new voice, new movements we see. Incident accident will continue, definitely is going to continue. More technical issues with the aircrafts, more accidents we do see, and earthquakes bhi hai in future. So because 1 and 9, जैसे कि 9 का year था तो next year is 1 year, they are just a mirror of each other. तो नेक्स्ट ईयर भी एंगर का ईयर है. एंड बेसिकली 2026 फॉर एवरीबडी इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ईयर बिकॉज 1 से 9 खत्म हो गया है. अब नाउ अगेन 1 इज कमिंग. वी ऑल आर गोना गेट अपॉर्चुनिटी. सो वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि हम वो सेम मिस्टेक जो हमने 10 साल पहले की थी हम वो रिपीट नहीं करें, बिकॉज वो सारे मौके हम सबको दिए जाएंगे नेक्स्ट ईयर. सो दिस टाइम वी हैव टू सी द थिंग्स विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, विद अ फ्रेश बोलते ना मेच्योरिटी we have to see, and ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है. 2 थिंग्स करना है, माइंड को कंट्रोल, ट्रेन, और दिल को साफ. ये 2 चीज़ अगर आपने कर लिया ना, 2006 एवरी मुलांग के लिए इज गोना बी फैंटास्टिक. दिस थिंग. देन सिल्वर इज गुड. व्हाट एल्स यू वांट टू नो? टेल मी. I want to know, like, अभी मैंने कहीं पे पढ़ा, there was this person, I saw a reel जहाँ पे, because you spoke about airplane accidents and all, तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट अगर जा रहे हो, कोई भी पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न एरियाज में, वैसे वहाँ पे वेस्ट बंगाल भी उन्होंने नाम दिया, सैम, पूरा वो साइड, त्रिपुरा, मेघालय, बोल रहे हैं कि जनवरी में एक डेट बोला, मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं, जनवरी टू फरवरी एंड तक का बोला कि जाओ ही मत. It's not like जाओ ही मत, but northeast, these area, we will have some trouble in the coming months. First, like Jan से March के बीच में, there will Airplane be, accidents, you're saying? maybe some दुर्घटना or something will happen. Not specifically airplane, but some दुर्घटना will happen. When you see India की कुंडली, भारत की कुंडली, so you see that. Yes. You know, last time you had predicted a few things जहाँ पे it did come true and we did post it, like when it happened. The Indigo thing, if you see right now. Because, and you know what has happened? Now what has happened also? एक तो हमारा न्यू ईयर चेंज हो रहा है, 26 नंबर 1 का ईयर है, प्लस राहु केतु as per कुंडली, as per the planet, on 23rd of November they shifted to a new नक्षत्र. ये जो शिफ्ट हुआ है ना, हम सब में, आप सब ने चेंज ये महसूस किया होगा, एंड दैट मस्ट बी राहु का जो खेल है वो ये है. बिकॉज द शिफ्ट, एक दिन ना यू मस्ट बी फीलिंग मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, एंड द नेक्स्ट डे यू विल फील मैं तो स्टार बन गया हूँ, मैं तो सब करने वाला हूँ. ये राहु खेल रहा है. एंड केतु क्या कर रहा है? जो हमारा फोमो है ना, उस फोमो से निकलने का जो प्रोसेस है ना, वो केतु करने वाला है. ठीक है. सो दिस 2 चेंजेस आर गोना कम. एंड इसीलिए ना आपको ऐसे लग रहा होगा, एक दिन बहुत लोगों को ना स्लीपलेस नाइट हो रही होगी, बहुत लोगों को दिस इंडिगो जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जे राहु केतु का जो है, बिकॉज डिस्टर्बेंस आने वाली है हम सबके लिए कुछ ना कुछ, एंड ये चलने वाला है टिल जनवरी. Okay. बेसिकली द ट्रांजिट जो हुआ है नक्षत्र में, इट्स गोना स्टे टिल 26th of December. Okay. 2026. Oh. So there are 2 transition happening. मतलब राहु केतु का भी हो गया है, न्यू ईयर भी हो गया है, यू नो. सो कुंडली भी, प्लैनेट्स भी खेल रहे हैं, नंबर्स भी चेंज होने वाले हैं इसी के साथ ना. सो इसीलिए हम सब ना बहुत बेचैन रहने वाले हैं.
nothing, you'll not find peace. या एक दिन अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, you'll feel like, oh, I'm at the top of the world. एक दिन लगेगा मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये आपको फील होना. इसीलिए you have to, like I said, Rahu is our mind management, intelligence. Ketu is our emotional management. अगर इन दोनों को हमने ठीक से ट्रेन किया, you're going to be a winner. A magic will happen in your life. Okay. Yeah. So, yeah. But again, fire incidents hai next year. Train durghatna bhi hai next year. And more of earthquakes I see after June, July also. Okay. Yeah. Do you see any possibility of political hostility or a war or terrorism? There's not going to be a war. There is not going to be a terrorism also. But हम सब है ना, दूसरा वॉर चल रहा है हमारा. ऐसा वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, पर एक दूसरे की इकोनॉमी में गिराने में, हम सब एक दूसरे की इकोनॉमी बढ़ाने में, एक दूसरे की नहीं, हम खुद की इकोनॉमी, हम ये सब गेम्स चलने वाले. Not the third war. Yeah. Not the World War 3 will not happen. Whoever say whatever, World War 3 is not happening. But there will be reforms, there will be changes. There will be a lot of reforms in the northwest country, US especially. Yeah. So you're saying that Trump Would not, may not complete his term. Oh, May not. baap re baap. And before we move on to the Mulang, if we talk about Bollywood, so one Yeah. of the films that I'm extremely excited about Yeah. is Shah Rukh Sir's film, which is King, because it's coming after again after like a good 3 years, because no 3 years, yeah, 3 years. 2023 में पठान, डंकी और जवान आई थी. 2025 हो गया है. I feel like King. Okay, so Shah Rukh sir का Malang is 2. Number 2 के लिए next year is good. इनको बस फैमिली की तरफ ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है next year. And number 2 वालों को, even him, they have to maintain the boundaries. When I say boundaries, you should not become an emotional dustbin. कि सब आ रहे हैं पोर करके जा रहे. You will be affecting your nervous system. And for Shah Rukh sir especially, would be one remedy for him rather would be, next to your bedside, keep your childhood picture. Oh. Why, whenever we see a childhood picture ना, हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए forgive कर देते हैं. So it's very important for the people who are not able to forgive themselves or forgive their spouse. We all make mistakes. We are human. You should just keep your spouse or your picture next to your bedside. Childhood picture, and just look at it. A glance ले लो सोने से पहले, and it really works. You will forgive yourself. You will forgive your spouse. वो मासूमियत है ना? You will forgive it. So we all number 2 people should do this. But King, what do you think about It's going to be fantastic. What you're talking even more than 300-400 crores. More than that. चलो वाला अच्छा बात है. Definitely. There is no doubt, because it's going to be his year. And he is a person who is, वो बोलते हैं ना, हर एक नंबर की एक प्रकृति होती है जो निभाना है हमको, वो निभा रहे हैं बहुत अच्छे से. और नंबर 2 की है फैमिली का ध्यान देना. इनकी लाइफ में इनको सब कुछ मिलेगा अगर इन्होंने फैमिली का ध्यान दिया. And which he is doing wonderfully. Yeah. He is all hands on. Yeah, that he is. So he is going to get more. And Ajay Devgan sir, he's also in Mulang too. So ये लोग जो है ना, ये लोग अपना जो है ना, जो requirement of the number, वो बहुत बहुत beautifully कर रहे हैं. So which they will get the result. Again, if we talk about Alia, Vicky and Ranbir's movie, Love and War. Yeah. It's a Sanjay Leela Bhansali movie. Yes. Alia also has Alpha with Sharvari and Bobby Sir. And she's number 6. So he's going to be a good year also for number 6. Yeah. But number 6 को थोड़ा सा selfish होना है next year के लिए. हाँ. They have to become selfish. They have to, मतलब stop being a biryani. अगर नहीं है तो no बोल दो. Do not apologize. It's okay. It's no. Then it's going to be a fantastic year for them. My own brother, Dadabhai, and my best friend, they are both number 6. Please say no. Both cannot say no. No, they have to. Next year, if they want to grow, they want peace, they need to say no. Stop being biryani, like I said. They have to say no. And not even, sorry की भी बोलने की जरूरत नहीं है. समझना तो समझो, वरना कोई बात नहीं. But you think like Alpha and Love and War will do really, really well? I think Love and War will do more better than Alpha. Okay. Yeah. Okay. Actually, it's going to be very close, because Alpha as an initial is a beginning of the
like aum, Yeah. है ना? Yeah. It's a beginning, it's a first Yeah. sound. Yeah. So वहाँ उनको बहुत मदद मिलेगी. Okay. Yeah. Oh, so you think that the name Even the has sound. numerologically it helps? Yes, it helps. Oh, lovely. Yes. And of course, let's speak about Dhurandhar, because Dhurandhar has, like, I don't know why people are considering it as a comeback of Ranveer Singh, because Ranveer Singh is such a powerful performer. और उसके बेचारी उसकी सारी मूवीज चली है यार, मतलब 2-3 बीच में नहीं चली, सिर्फ सर्कस नहीं चली सर्कस नहीं चली. 83 technically came during COVID, but he was brilliant in 83. Absolutely. And nobody can take away the fact that he's such a chameleon when it comes to performances, Yeah. right? I get so irritated reading comments, and see, Ranveer is not my best friend, so I don't even have to speak like a friend. But I'm a human being who will stand up for what's right and what's wrong. Rocky or Rani देख लो, कोई भी movie देख लो, he's a shapeshifter. He can do anything, right? And with Dhurandhar, he's proved that. Oh. He's been through a lot of things in between, jahan pe, you know, of course, good things have also happened. He's become a proud father, and the movie is doing really well. But he's also subjected to a lot of negativity. What do you think about this? And do you think Dhurandhar 2, because Dhurandhar is doing so well, Dhurandhar 2 is coming up in... Will also do well. And we all are forgetting that he was on a maternity leave also, Yeah. right? Which he took it. Yeah, paternity And which leave, yeah. he should take it. I mean, हाँ पहले तो वो break पर थे. Secondly, दुआ जो उसका number combination है, she's gonna be a fantastic. She's gonna be a lucky this thing for her father. ये बहुत luck अपने father के लिए लाने वाली है. So she's just come, and lot of luck is coming his way. And Deepika Padukone, in, like I've said it also in previous pods, for her 27 is going to be fantastic. We will be like, we'll be seeing Deepika all over. Like where she left, we will not even think कि वो इतने थोड़े से साल के लिए disappeared थी. We'll forget that phase. She's going to be fantastic in 2027. That's going to be her year. But about this criticism that is coming Ranveer's way, what do you have to say about that? It is just that हर एक को बोलने का हक है ना? So trollers, like how you get, we get. So it's just one of the things, and it doesn't matter. And I'm sure we all are grown up. कौन कहाँ बैठ के क्या सोच रहा है? But he doesn't have to look back, right? Because no, he doesn't. There are two Like films. I said, more than his luck, it's going to be Dua's luck. The parents are going to do fantastic. Again, Raha, her date of birth combination is so beautiful. She's going to be on a next level. She's going to earn more name than her parents. Ooh. राहा का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, उसके नंबर कॉम्बिनेशन ओनली when जब वो टीन्स जब आएगा, that time she needs a right guidance, because उसका जो नंबर कॉम्बिनेशन है, if she gets a correct guidance, a good guru, okay, a good guidance, a good guru, a good dictator, she will be better than Alia and father. The best one in Kapoor Khandan. Really? Yes. And I think she will have great guidance, because honestly, Alia, Ranbir, she has got in her chart also like... a promise of doing business very well. Forget about acting. So I see her doing not just acting, but I see her also doing multiple businesses. But does she also bring a lot of luck for Alia? And yes, that's what I'm saying. Dua and Raha, both are bringing a lot of luck. And Dua though is like a, जो राहा का नंबर है, नंबर 8 she is, it works as a stop loss for the father. जब भी नंबर 8 का बच्चा आपके घर में पैदा होता है, हम इतनी बैड थिंग बोलते हैं नंबर 8 के लिए, बट नंबर 8 अपने फादर के लिए स्टॉप लॉस लाता है. अगर उसका लॉस चल रहा है ना, the child will bring stop to it. So number 8 is like a stop loss to father. So definitely वो सारे जो भी losses हुए या whatever you are saying, flop थी, ये थी, it's all gonna fade out. Also, it's no looking back for him. Also, because you said this, so I want to understand, like, so if you're saying that a child can bring luck to their parents, yeah, absolutely, and parents can also bring luck, like their mulang can also bring luck. This is a personal question I want to ask you. So my father is a number 7, 25th November. Yeah. My mother is a number 7, 25th February. Lovely. I am a number 4. Yeah. Okay. So I want to understand that, has it happened this way, like where they have brought luck to me or I have brought luck to them, mom, dad, or me, anybody? So I'll tell you something. For number 7, when you are number 7 and number 4, both are karmic death number. Karmic deaths चल रहे हैं, इसलिए you are born on 4, 7 and 8. That is why. That's one of the reason. And हमें जो लगता है ना हमारी लाइफ में जो भी है ये हमारे सिर्फ पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, ये बिल्कुल रॉन्ग है.
पास्ट लाइफ कर्मा इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, वो तो है ही। आपके पितरों के कर्मा है, आपके पेरेंट्स के कर्मा है, और आपका स्पाउस का कर्मा है। ये 4 कॉम्बिनेशन बन के व्हाट यू आर गेटिंग इज द रिजल्ट ऑफ इट। एंड देन कम्स योर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है, बिकॉज ना सपोज एक कोई है, लाइक आई हैव सीन अ चार्ट ऑफ समबडी हु इज अ very good top politician, and his chart doesn't have a promise that he will rule so high in life. But when I saw his son's chart, I could understand where it's coming from, because sun के chart में राजयोग है। अब वो बच्चा तो छोटा है, वो कमाने तो नहीं जाएगा ना, तो पैसे कहाँ से आएंगे, वो मर्सिडीज में कैसे घूमेगा, तो क्या करेगा ऊपर वाला, उसके फादर को, उसके मदर को देगा। So that's how it works. So definitely what you have or what you have achieved is the combination of your past life karma, your parents karma, ancestor karma, and the whoever the next partner is going to be unke karma se. But abhi at present is this 3 combination ruling you. Okay, so in 2026, before we get into the Mulangs, I want to ask you a few questions about personally myself. Health-wise, mom and dad, my brother is a number 6, like I told you, 15th March. So are there going to be any complications that we should take care of? Is it going to be okay? Okay, for number 4 and number 6, your past connections will try to connect with you all again. Okay, please. And I would like to tell you all, you have to be very nice and with a lot of maturity. Okay, you have to say thank you and closure. This should be the thing for number 4 and number 6 people. ये तो होने ही वाला है आपके साथ. I am vouching on that. And health wise for you, like I said also, May के बाद is much better. You will have work till May. May के बाद भी मिलेगा, May के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा, but till May ना बेचैनी होती है ना, कंटेंटमेंट नहीं, पीस नहीं, कुछ तो पीस मिसिंग है of this jigsaw, वो वाला फीलिंग रहने वाला है. I'll give you a few remedies for that, so that you are at peace. Okay. And health-wise, mom health issue we have to take care of. More I see is more of a stomach, uterus, and high blood pressure. We have to take care of. Okay. Father, we have to take care of cholesterol and high blood pressure. These 2 things I saw seeing in your chart for them. Nothing serious, I see. Nothing serious, God's willing. Nothing serious, but yeah, this we have to take care of. And my brother? Yeah, he's a number 6. I have to see his chart and I have to see more detail. Number 6, like I said, but we'll see his chart in detail. Yeah. Yes, we'll see his chart in detail. Chalega. Work-wise, because you know that मैंने परेशान कर दिया है. For any decisions, I am constantly calling her. For any stuck money, which you clearly know about, I'm calling her and everything. Like you which said, clearly you're not going to get, sorry. Fully, but कुछ मिलेगा? बहुत पीछे पड़ना पड़ेगा. नियत नहीं है सामने वाले की, और अगर नहीं दिया तो उसका 10 गुना जाने वाला है, बिकॉज सन इज अ लीडर, इज अ रूलर, और वो जस्टिस करेगा. बट ये जस्टिस हमारे साथ होता क्यों नहीं, हमारे जीते राइट अवे नहीं होगा ना, कुछ अच्छा है ना, नहीं हो, देन वी आर बोर्न इन अ मोर बेटर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ. पता है कुछ लोगों को बैठ के लोग पैसे देके जा रहे हैं. व्हाट यू थिंक, व्हाई आर दे जस्ट गिविंग, व्हाई आर दे अर्निंग सो मच? बिकॉज इन सबको देना बाकी था उसका पिछले लाइफ में. सो इट्स जस्ट अ कनेक्शन. आज अगर किसी को कहीं, हम कहते हैं ना, इतनी छोटी जगह से आए हो, आपने इतना बढ़िया किया है, यू नो, नो बैकग्राउंड, नो सपोर्ट, नो हेल्प, शाहरुख सर. ओके, सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंसेस्टर्स, पेरेंट्स एंड हिज पास्ट लाइफ. यू नो, पास्ट लाइफ में मे बी ही मस्ट बी समबडी जो सिर्फ देता गया होगा, और लोगों ने आके सिर्फ लूटा ही होगा, या तो लोगों ने सिर्फ चीट ही किया होगा. True. You know, he must have suffered that much. When is this suffering end for me? This people cheating me, people your taking chart, me for granted. Your chart has a promise of people taking you for granted, so you don't have to judge the book by its cover. You have to send me the picture, name, and the date of birth, and I will tell you who to trust next. Okay, done. I to trust you, so whatever you say. So now coming to the main part, which is the Mulank. You know, 1 to 9. 2026, अगर आप एक एक करके बता सकते हो कि नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है. So number 1 के लिए 2026, ego will be either their teacher or
it will be their jailer. So they have to decide टीचर चाहिए है कि जेलर चाहिए है, किसे चूज करना है आपको with your ego. So you have to tame your ego, you have to tame your anger. Anger will be your दुश्मन. Anger जब भी आएगा आप अपने your decision making will go haywire. Okay. सन का ईयर है, नंबर 1 इज सन. सूर्य भी सेट होता है, सनसेट होता है टू स्टार्ट अ न्यू डे, राइट? सो यू हैव टू, आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, सो यू हैव टू जस्ट डिसाइड रिएक्शन करना है या चुप बैठना है. रिएक्शन क्या होता है पता है? एक बच्चा है रिएक्शन. सो यू हैव टू डिसाइड कि मैं बच्चा बिहेवियर नहीं कर रहा हूँ. वी डोंट वांट टू गो देयर. ओनिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, that will give magic to you. Owning the responsibility will make you a winner. So you have to make sure that you're owning your responsibility, okay, and not reacting. Relationship में बहुत great नहीं है next year for number 1 people. Possibility होगी कि आपके spouse ना, आप बहुत सारी mistakes करेंगे. खर्चा होगा उनसे, आपने कुछ पैसे दिए, they would spend too much or something like that. You have to stay calm. Okay. आपको कोई family रिजॉल्व करने के लिए आ सकते हैं कि हमारा सेटलमेंट करवाओ या समथिंग, वो करना पड़ेगा आपको. आपको जो मंत्र जाप करते रहना है वो है श्रिम, रिम श्रिम रिम श्रिम रिम श्रिम, ये करते रहना है. अगर 108 बार भी डेली कर रहे हो, दैट वुड रियली वर्क फॉर यू. फॉर नंबर 1 पीपल. नंबर 1 पीपल को थोड़ा सा मर्क्यूरी का सहारा लेना है. जैसे कि 1 इज सूर्य, नंबर 5 इज मर्क्यूरी. वाई मर्क्यूरी का सहारा? 1 जो है उसमें एंगर है. मर्क्यूरी क्या करता है? वर्ड्स मैनेजमेंट करता है, हमारी वाणी है, ठीक है, तो उन्हें सहारा लेना है मर्क्यूरी का, अच्छे शब्द निकालने हैं. नंबर 1 वालों को पास्ट में जो 9 years से जो भी हुआ है ना, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है. फॉरगिव, फॉरगेट, लेट गो, रीस्टार्ट. अगर आपने, बिकॉज नंबर 1 वालों को एक राजयोग का मौका है दिस ईयर 2026. वो राजयोग का कैसे, हाउ यू अट्रैक्ट? बाय इनकल्केटिंग daily habits, small little habits, anger control, ego control, I am Mr. Right, that control. If you're doing it, okay, and you are there for your family, you are going to be, you have to control. मतलब जो भी हो गया उसे भूल जाओ, माफ करो. अगर आपने पास्ट के बारे में बात करते रहे आप, okay, you're going to lose this opportunity of राजयोग. एंड आपको नंबर 1 को इस साल अपने नेटवर्क्स को पूरा यूज करना है. नेटवर्किंग जो भी किए ना आज तक, सो नेटवर्क इज योर सेल्फ वर्थ, वो नेटवर्किंग को पूरा इस्तेमाल करो. यू आर गोना बी विनर. सो देयर इज अ सॉन्ग आल्सो. अगर आपको समझना है कि 1 नंबर के लिए कैसा जाने वाला है ये साल, सो यू हैव टू लिसन टू दिस सॉन्ग जिंदा है अगर, फ्रॉम भाग मिल्खा भाग. ये नंबर 1 वाले जो है, इसको आराम से सुकून से बैठकर सुन लो. बस वो उसमें जो बोल रहा है लिरिक्स, दैट्स फॉर यू. And you have to be for this year, and you have to just do that. Okay. Yeah. Okay. You'll find your answers. Okay. Yeah. Mulang Do. Okay, so Mulang Do वालों को जो है 2026 में, like I said, set your boundaries and stop being a dustbin. जो लोगों से, बाहर वाले लोगों से जो भी आ रहा है, इमोशन आपको आकर डस्ट कर रहे हैं, डस्टबिन में फेंक रहे हैं, you will be affecting your nervous system. Okay, so stop that. एक सराउंडिंग में ना एक बाउंड्री कर लो कि not now, later, because this year 2026 your family will be needing you. Your family will be going through certain things जहाँ पर you have to take care of them. Okay. They will have fears, they will have गलतफहमी, they will have छोटे मोटे झगड़े, आपसे नाराज होंगे काफ़ी चीज़ों के लिए. कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है हस्बैंड्स को कि वाइफ क्यों नाराज है. they're still figuring it out. Yeah. So you have to deal with them very patiently, because इनके फैमिली में ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है जहाँ somebody will be dealing with depression or anxiety. So when they are dealing with something like that, you cannot have a higher pitch or you can't get angry with them. You have to understand it because they are just going through it. Yeah. So your family will be needing it more. तो अगर आप बाहर का भी सुन रहे हो, घर का भी सुन रहे हो, you will be burnt out. So for number 2, just draw boundaries for yourself. One is that इनको एक अपने बचपन की पिक्चर रखनी ही है इनके पास, because they need to forgive themselves for lot of things. और इनको एक चीज़ करना है, अगर किसी के साथ मन मुटाव है फैमिली में, they have to just tell themselves
वो भी गलत नहीं, मैं भी गलत नहीं, हालात ऐसे थे. एंड जस्ट फॉरगिव. इनको जो मंत्र जाप करना है वो है सोम. सोम का just chant 108 times daily. It will help them. Just say इनको Som. just say सोम. सोम is moon. So इन्हें सिर्फ सोम का जाप करना है. Okay, 108 times they will do it. इनके लिए जो सॉन्ग है वो है कभी कभी अदिति, जिंदगी में कोई है ना. सो दिस सॉन्ग इज फॉर नंबर 2 पीपल. एंड इनको एक चीज करनी है. अपने वर्क डेस्क, अपने वॉशरूम के मिरर पे, घर की एंट्री पर, या तो आपके बेड साइड पे एक रेनबो का स्टिकर, यार एक कुछ तो एक पेंटिंग या समथिंग लगा दो. रेनबो क्या करता है ना, साइकोलॉजिकली ये आपको होप देता है. हाँ. So you have hope that there is going to be a good thing. And because ये लोग emotionally है ना, इनको बहुत strong रहने की ज़रूरत है. It's going to be a good year, but emotionally they need to be strong this year. So they need to have these things around. And I would want them कि अपने wallpaper पे या तो अपने घर में एक full moon की painting, या now you're getting that globe crystal हाँ. of moon, वो कुछ रखो. That will help them to calm down their emotions. एंड नंबर 2 वाले लोग हैं ना, अगर इन्होंने सपोज अ मदर इज ऑफ नंबर 2 एंड शी इज विशिंग, शी वांट्स कि मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरे हस्बैंड अच्छा करे, इफ यू नंबर 2 फीमेल, आप 43 डेज तक नंगे पैर मंदिर चले जाओ विद द मन्नत. एंड आई एम टेलिंग यू इन दैट 43 days whatever you're wishing for will complete. Number 2 also have to support their weak siblings. Okay, अगर इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया फैमिली को, that family will rise and with that you will also rise. So that's for number 2. Okay. So number 3. Okay. For number 3, आपने knowledge बहुत इकट्ठा कर ली. Okay. Now it's time to work on your wisdom. So आपने जो भी डिग्री इकट्ठा की है ना, उससे आपको सैलरी तो अच्छी मिल जाएगी, बट आप जो डेली हैबिट्स कर रहे हो ना, उससे आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है. सो राहु देव, व्हाट ही इज गोना डू इज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट करने वाले. हाउ? जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ चाहते थे, आपको वो नहीं मिली, जॉब हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, मनी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डोंट गेट रिजिड. क्यों नहीं हुआ? डोंट बी अ क्राई बेबी. जस्ट थिंक ये ईश्वर की मर्जी थी, ये श्री की मर्जी थी. एंड जस्ट बी फ्लेक्सिबल, जस्ट बी ओके विथ इट एंड जस्ट फोकस, बिकॉज नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा साल है. Okay. सो यू हैव टू जस्ट बी फोकस्ड. अगर ये लोग रिजिड रहेंगे ना, दे विल गेट दिस you get the spots on your face, on your cheeks, they will get the freckles, they will get that tummy weight, that all that वो सारा जमा होगा आपका rigidness. So इसलिए it's not good for your health, especially number 3. They'll get back pain also, they'll get stomach issue also, and that is only because of the rigidness, not accepting it. Okay, for them what they have to do is, कई बार है ना नंबर 3 वालों को है ना, मासूम होते हैं, तो कोई होता है ना बाहर के जो शातिर लोग, वो चढ़ा देंगे, तुमने तो इतना किया तुम्हारी फैमिली वालों के लिए, तुम्हें तो इस्तेमाल ही किया गया. प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप, बिकॉज वट एवर वी आर डूइंग फॉर अ फैमिली और फॉर एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, ये सब करना है हमें, बाकी है. एक होता है ना, एक पर्सन पूरे फैमिली को उठा रहा है, वो भी नसीब है. यू आर गिवन एक सोल का बर्थ इन अ फैमिली इज बिकॉज ऑफ द एंसेस्टर चाहते थे कि मेरे खानदान का भला हो, या एंसेस्टर चाहते थे कि तुम भाई बर्बाद हो, तुम तो मुझे भूल ही गए. So maybe that ancestor have sent that soul in your family. So don't come in a talk of outsiders. Okay, number 3 वालों को थोड़ा थोड़ा कभी अकेलापन फील होगा. I would say don't be afraid of that, because when you are alone you have a time to correct yourself. भीड़ में तो कनेक्शन बढ़ेंगे, बट जब अकेले होगे तब करेक्शन होगा. That self correction is very important for number 3. The जाप they have to do is स्ट्रिम का जाप इन्हें करना है. इन्हें घास पे, ग्रीन ग्रास पे वॉक करना है. नेक्स्ट दे गोना गेट देयर आंसर्स, नंगे पैर. दे विल गेट देयर आंसर्स इन देयर ड्रीम्स. ओके, एंड इनके जो फादर ने अच्छी चीजें की होगी ना, इनको रिटर्न में मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर. इनके फादर ने जो भी अच्छे काम किए होंगे, और इन्हें अगर कुछ क्रोध है ना, माई फादर हैड द मनी बट ही स्टिल डिडंट डू दिस फॉर मी, he still didn't send me for engineering, he still didn't send me for this, he had the money, आज मैं इंजीनियर होता, वो सब माफ कर दो नंबर 3. बिकॉज आपको लाइक आई सेड, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है फॉर एवरी नंबर, बट 1 2 3 को के लिए तो ऐसा ईयर है कि इन्हें अपने एक्चुअल न्यू पोटेंशियल पता चलेंगे, और वो न्यू पोटेंशियल को टैप करने के लिए ना, यू हैव टू रिमूव ऑल द मलाल फ्रॉम योर हार्ट.
कि ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, देयर इज समथिंग वेरी गुड केप्ट फॉर मी इन स्टोर, Hmm. सो दे हैव टू डू दैट. एंड इनफैक्ट इनको अगर हो सके ना तो कोई शिवाजी महाराज या टाटा सर, इनके जो पिक्चर्स है या इनका कुछ है ना अपने आसपास रखो. यू नीड समबडी, एनीबडी हु यू लुक अप टू, यू नो दैट ही इज माय रोल मॉडल. Hmm. स्टीव जॉब्स हो गए, जो भी, keep their picture or something around them so that you're reminding yourself constantly कि wisdom का time है. Hmm. And for them the song is हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. That's the song for them. Okay. Wow. Yes. Lovely. And now my favorite number, मूलांक नंबर 4, जिसके बारे में मैं हर टाइम पूछता रहता हूँ क्योंकि आई एम अ नंबर 4. Of course, 13 भाई नहीं, how साहब. can I forget? Yes. लिसन, कितना परेशानी यार, मतलब हर चीज में टेस्ट, हर चीज में टेस्ट. मतलब why is this going to continue for the rest of my life? You know, you called me from the airport and I asked you to listen to one song. Yes. आवारा हूँ. Yes. So that is a song for number 4 people. पर गर्दिश में हूँ, आसमान आसमान का का तारा और हूँ. गर्दिश में क्यों हूँ? क्योंकि ये कार्मिक डेड नंबर है इसीलिए. तो आपके काम बनेंगे, बट वो स्टॉप कर दो सोचना कि यार मेरे काम बनते पर कुछ होता है उसके बाद बनते हैं. सो जस्ट स्टॉप दैट, डोंट गिव एनर्जी टू दैट. वन इज दैट. नंबर 4 के लिए 2026 इज अ होम कमिंग ईयर. ओके, कलेजे में ठंडक आ गई मेरे. या इट्स गोना बी अ होम कमिंग ईयर. जो भी तकलीफें थी, जो भी चल रहा था, कलेश, यू नो, यहाँ से बम गिर रहा है, वहां से कुछ हो रहा है, यहाँ से, यू नो, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग टुगेदर, ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला है. जस्ट सब्र रख लो. And if you want more things, more good things happening to you, okay, you have to start organizing everything. Organize your work desk, organize your cupboard, your shoe rack. You have to be very organized. I have a client, she's number 4, and her problem is, her rona in life is boyfriend नहीं मिलता, और मिलता तो टिकता नहीं है. Okay, तो boyfriend नहीं मिलता. My first question is how good you are with your cleanliness. Do you even bathe every day? Because I could see in the chart she doesn't. So she's like, no, I don't. So I'm like, very nice. So one is that you have to start taking care of yourself. Secondly, शादी नहीं हो रही है. I was like, what is the preparation? See, आपको कोई चीज चाहिए आपकी लाइफ में, you have to prepare for it. What is the preparation you have done? Do you know little cooking? Do you do self-care? Do you just, मतलब ये सब बहुत important Yeah. है. How do you speak? Have you worked on your personality? Have you worked on your, how do you groom yourself? So before you could welcome something in your life, you need to prepare for it. So number 4 needs to do preparation. तुम लोग बहुत बार है ना बस ऐसे ही चढ़े जाते हो without preparation. तो वो थोड़ा सा confident हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, ठीक है. विदाउट प्रिपरेशन मत जाओ, थोड़ा तो कुछ रेडी रख कर जाओ. एंड अगेन, लोग क्यों नहीं टिकते, रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क करते? फर्स्ट इज द कार्मिक डेथ नंबर. सेकेंडली ना, नॉट जस्ट फॉर 4 नंबर, फॉर एनी रिलेशनशिप, इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम वेयर दैट person doesn't last for too long in your life, it is just that you are not learning your lesson and you are not healing. Till you don't heal and you learn your lesson, आपको second person भी आप वही attract करोगे, because you have not learned your lesson, and you will keep attracting the same energy. And number 4 ना, जो पर्सन के बारे में अट्रैक्ट करेगा वही पर्सन आएगा उसकी लाइफ में. यू गाइस, 2026 में भी सेम है. यस, इज गोना बी सेम. यू हैव टू, जो भी पर्सन आप अट्रैक्ट करने वाला हो उसके बारे में एक्चुअली आपने सोचा है. सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स कि मैं क्या अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ. नंबर 4 है ना, बच्चे होते हैं. इन सारे अंकों में ना मुझे 4 बच्चा लगता है. ओके, दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर द, इनको खुश करना भी बहुत आसान है. ओके, एंड आई ऑलवेज से नंबर 4 वाला तो सबकी लाइफ में दोस्त होना चाहिए. दे आर यारों के यार, नंबर 4. सो एंड दे आर देयर. एंड सबसे सैड थिंग यही है, नंबर 4 को सबसे ज्यादा चूना लगता है दोस्तों से, लोगों से. सो दैट दे हैव टू बी केयरफुल ऑफ. नंबर 4 को जो जाप करना है फॉर दिस ईयर इज ओम, इनके ऑरा क्लेंजिंग के लिए. और इनको अपने घर में एक स्टैच्यू रखना है बुद्धा का इन अ मेडिटेशन स्टेट. ओके, और इट कुड बी अ पिक्चर ऑल्सो, इट कुड बी अ स्टैच्यू ऑल्सो, बट और कहीं पे भी अपने घर में, डायरेक्शन डजंट मैटर, जस्ट कीप इट. वन इज दैट. नंबर 4 वालों को है ना, ये जो दिल में फील करेंगे ना, सपोज आई एम फीलिंग दिल में लोनली,
इनके आसपास यही स्प्रेड होगा और ये वही अट्रैक्ट करने वाले हैं. So you have to be very again mindful of what you are feeling. Try to keep yourself happy. When I say try to keep yourself happy, that doesn't mean relationship skip करो, तू नहीं next. एक तो नंबर 4 में एक और एक प्रॉब्लम है. तुम लोग है ना पास्ट बॉयफ्रेंड प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को बहुत कंपेयर करते हो. Stop that. Past and present, no comparison. मेरा तो पास्ट को कंपेयर करने का कोई कारण ही नहीं है. We're talking क्योंकि about हम- just about your yeah, number 4. But I am honestly भाई वो बहुत ही गलीच इंसान को क्या मतलब कंपेयर Like I but said, number 4 and number 6 वालों की लाइफ में and number 4, number 6, number 7 इनकी लाइफ में जो पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप है वो नॉक करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर. And you have realize one thing right now. that you have to do a closure properly. Number Which 4, party? number 6, number 7. Number 4 is me. Number 6 is my brother. Number 7 are my parents. मतलब हमारे past life के मतलब clearly because both of us are not married and not in relationships, my brother and I. So clearly it has to be some relative that is going to come. And I only have to mitigate the whole thing because my parents and my brother are very gullible. I am not when it comes to relatives. I'm coming to that also. Number 4 को next year मीठी बात करनी है. Oh, प्लीज टॉक स्वीटनेस लेकर आओ अपनी बातों में. तुम लोग है ना इतने बिटर लोग हो ना बात करने में. एज ए नॉट बिटर बट यू गाइस आर वेरी ट्रुथ. yeah. मतलब मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड. बुरा लगता है तो लगो वरना तुम निकलो. ठीक है. ये जो ट्रेट है ना नंबर 6 को अपनाना है नेक्स्ट ईयर के लिए. और नंबर 4 वालों को नंबर 6 के ट्रेड्स लेना है. that I am biryani. मतलब I have to become like my brother and my yes, brother has to become like you. So you have to be थोड़ा सा मिठास लेकर आओ. रोज कुछ ना कुछ क्लीन करना है. कुछ नहीं तो निकलते वक्त शूज एक वेट वाइप रख लो. शूज को वाइप करके निकलो. रोज कुछ ना कुछ क्लियर करना. Why? Because one small thing what you do, you will be doing it in everything. तो अगर आप एक चीज नीट रख रहे हो ना that habit you're inculcating everything. और अगर नंबर 4 ने नीटनेस क्लीनलीनेस ये सब कुछ ला लिया ऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप को there is no looking back. मतलब it is actually a homecoming year. Like work wise, do you think it is? Work wise is going to be good. Like I said, you have to adopt small little things and changes. And like I said, sweetness चाहिए. ओम का जाप करो. बुद्धा का meditating state में स्टैच्यू. Bring all this thing. You know, उपाय जो होते हैं ना, many a time people just tell me, deviating from a topic, many people tell me, West, as for Vastu, West is a zone of profit. Yeah. They will say, मैम हमने ये लगा दिया, वेस्ट में वो लगा दिया, हमने एक रेमेडी है जहाँ पर हम वेस्ट में घी का दिया लगाते हैं फॉर हैविंग मोर इनकम मोर प्रॉफिट इन लाइफ. हमने वो कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. तो हमने पता है क्या कर लिया, ये सब तो कर लिया, रख लिया, लगा दिया, कर लिया. बट वेस्ट इज अ जोन ऑफ शनि देवता. आपने अपनी लाइफ में किसी का भला प्रॉफिट सोचा या किया किसी के लिए? नहीं किया ना. हाउ यू एक्सपेक्टिंग कि आपकी लाइफ में प्रॉफिट आए? सो इफ यू वांट प्रॉफिट टू कम इन योर लाइफ यू हैव टू मेक श्योर कि सामने वाले का भी प्रॉफिट हो रहा हो. फिर आप कितनी भी रेमेडीज कर लो, वो तो मैं हमेशा आप करता हूं. कितना भी ले आओ, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एवरीबॉडी. Yeah. अगर आप वेस्ट को ट्रीट कर रहे हो अपने घर में, वेस्ट में मैं ये रख रहा हूँ, वो रख रहा हूँ, मैं रेमेडीज कर रहा हूँ, ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बिकॉज वेस्ट एज पर वास्तु इज अ प्रॉफिट जोन. Yeah. सो इफ यू आर ट्रीटिंग इट दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट राइट अवे. सिर्फ उपाय जो है ना वो सिर्फ चीजें रखने से नहीं होती है, आपको मन से करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ज्ञान भक्ति ये भी ऐड करना है, एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन Yeah. कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, एम आई इवन गेटिंग द चेंज और आई एम जस्ट बीइंग सेल्फिश कि सब मुझे ही मिले, पूरे दुनिया का वेल्थ मुझे ही मिले. ये जो है ना ये हमें चेंज करना है. Agreed. सो दैट्स फॉर नंबर 4. But number 4, I just want to ask you health related issues कुछ. नो Anything? इनके लिए अगेन स्टमक एंड अगेन इनको बोन पेन, एक्स एंड पेन, एंड अगेन बिकॉज ऑफ देयर रिजिडनेस. तुम लोग Bone pain. थोड़ा सा वो रहते हो ना, तुम जाने नहीं देते हो ना, तुम्हें नहीं मिला ना तो मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना ही चाहिए था, ये जो है ना ये मुझे क्यों नहीं मिला, मिलना ही चाहिए था, इसको जाने दो. नहीं मिला ना तो और अच्छा है, मिलता तो शायद अच्छा था पर नहीं मिला है तो और अच्छा है. टेल योरसेल्फ दैट. नहीं हुआ तो और अच्छा है, इससे कुछ अच्छा आएगा. टेल योरसेल्फ व्हेन यू आर गोना गेट इट एंड मेक इट बात, यू आर गोना बी सुपर्ब. Okay. I told you na the amount of money you're gonna earn as per your chart. 48 crores you had said, no? By the time, what is my age? Oh, बहुत बहुत जाने वाले हो, but there will be a wrong investment also.
but I'm Just there. took the wrong investment. don't It's not worry. the home that I No. Wrong investment. You'll be tempting to for something, and you'll be putting like a good chunk there. I'm Okay, in planning a to start a business. business, by the way. Okay, in a Okay, business. I have you'll to be speak to you. how we have Right to speak. after this. Yes. Good that you reminded me. I forgot. Mulank number 5. राइट तो मुलांग नंबर 5 के लिए जो है इनका ये जो साल है दे हैव टू बी केयरफुल ऑफ जबान संभाल के सो इनका जो कर्म है इनकी वोकैबुलरी होगी इधर इट विल बी अ गेम चेंजर या तो गेम ओवर ठीक है सो दे हैव टू यूज अ वेरी वर्ड्स का यूज बोलने का तरीका ये बहुत ही सोच समझ के करना है इन्हें किसी के हौसले को या किसी के यू नो कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं है नीचे नहीं दिखाना है राहु देव जो है वो उनके त्रोत चक्र में बैठने वाले हैं ठीक है सो इवन व्हाट इफ आई फील इफ यू हैव नंबर 5 एंड इफ आई फील गुड अबाउट यू वो गुड आएगा इफ आई फील बैड अबाउट वो बैड भी आएगा तो वो जो बैड है उसको कर्ब करना है यू डोंट हैव टू स्पीक बैड किसी का दिल नहीं दुखाना है सो नंबर 5 को गुस्सा भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर गुस्से पे कंट्रोल करना है नंबर 5 विल actually is a number of business and number 6 is a number of unconditional love okay तो इसलिए I always get this thing कि तुम 5 और 6 जब भी मिलते हो like when there's a couple of 5 and 6 एक को ऐसा होता है 5 को तुम क्या लेके आ रहे हो टेबल पर और 6 वाला कैसा होता है मैं लाइफ में कुछ प्लान नहीं करता सो यहाँ पर जो ऐसा बंदा अगर बोल दे कि मैं लाइफ में कुछ प्लान नहीं करता इन्होंने अपने लिए ऑलरेडी ग्रेव है ना खोद दी है so that should not be the thing so number 5 वालों को जो जाप करना है वो है M in English we say AM like that M का जाप करना है नंबर 5 को So, नेक्स्ट 4 को ओम का है हाँ नंबर 5 को M एंड इनको जो है गॉसिप नहीं करना है किसी की बैकबाइटिंग नहीं करना है इन्हें अच्छे शब्द यूज करना है इन्हें कभी गुस्से में अपने पार्टनर्स के लिए गंदा नहीं बोलना है क्योंकि ये जो नेक्स्ट ईयर बोलने वाले हैं ये सच होने वाला है सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन्हें अपने पास है ना कोई अच्छे ओरेटर का पिक्चर रखना है या तो इन्हें कुछ नया कुछ स्किल सीखना है यू नो एंड इनफैक्ट वी ऑल शुड कीप लर्निंग न्यू स्किल वेदर इज फॉरेन लैंग्वेज और एनीथिंग जब आप कुछ नया सीखते रहते हो ना आप बहुत लेट ओल्ड होते हो सो यू हैव टू कीप लर्निंग कीप दैट थिंग अलाइव इन यू कि कुछ ना कुछ हमें सीखना है तो नंबर 5 और नंबर 3 को कुछ ना कुछ नेक्स्ट ईयर सीखना ही है फॉरेन लैंग्वेज हो जाए कुछ नया कुकिंग क्लास हो जाए कुछ भी नया आर्ट जस्ट लर्न समथिंग न्यू एंड इनको अगर इनके काम में या इनके बिजनेस में थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड दे हैव टू कीप अ सरस्वती यंत्र वर्क डेस्क पे रख दो या तो अपनी जो बिजनेस प्लेस है वहां पे रख दीजिए सो दीज आर द रेमेडीज दे हैव टू डू फॉर नंबर 5 मूलांक नंबर 6 नंबर 6 seeing good in everything is number 6 ये लोगों में है ना ये ना इनके पार्टनर्स को निखारते हैं एक्चुअली सो हैविंग अ नंबर 6 पार्टनर यू आर वन ऑफ द लकीस्ट देयर इज अ सॉन्ग फॉर देम आपके प्यार में हम नॉट द पिक्चराइजेशन बट द सॉन्ग okay the lyrics yes it's for number 6 people but number 6 people go for the next year they have to start saying no they have to put themselves first treat themselves well when I say treat themselves well no people take it wrong they think that one good spa day is taking care of yourself but it's not like that a spa day is that's not what I mean take care of yourself what I mean is remove toxic people from your life you have to discard this is the year for you बिकॉज अगर आपने नहीं डिस्कार्ड किया आप एक लूप में अटक जाओगे नंबर 6 मैंने बहुत लोगों को देखा है दे गेट ये ना नहीं बोल सकते सो दे गेट वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटक जाते हैं वो लूप में अटक जाते हैं एंड बिकॉज अकेले हो जाएंगे डरते हैं वो अकेलेपन से सो दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन द पार्टनर इवन इफ इट्स बैड फॉर देम इट्स अ रेड फ्लैग फॉर देम दे डोंट और अगर छोड़ भी देते तो क्या हो जाता अगर अभी अकेले होते इधर दे गो वेरी बिंज ईटिंग के लिए जाते या तो फिर ऑन अ शॉपिंग स्पीयर सो ये दोनों चीज इन्हें अवॉइड करना है एंड दे हैव टू अवॉइड मल्टीपल रिलेशनशिप ओके सो दिस इज लाइक अ बिग नो फॉर देम इन्हें है ना 2 ब्रेसलेट पहननी है राइट रिस्ट में फॉर द नेक्स्ट ईयर वन इज स्फटिक की और वन इज रोज क्वार्ट्ज सो इट्स शिव पार्वती स्फटिक इज शिव एंड रोज क्वार्ट्ज पार्वती और इनका ये नेक्स्ट ईयर ब्रेक होगा भी
सो एक 4-5 एक साथ खरीद के रख लो. जैसे ही ब्रेक हुआ ना, दैट मीन्स अ बैड एनर्जी, अ बैड वाइब, अ बैड नजर. सो रिमूव इट, थ्रो इट, wear a fresh one right away. They have to do that, okay? You can energize it also, like full moon में keep it, wash it in the water or something like that, है ना? Salt water से wash कर लो. You can energize and wear it also. Also, इनको भी है ना चीज़ें let go करनी है. Stagnant कुछ नहीं रखना है. पुराने कपड़े फेंक दो. Old cosmetics, declutter. एक ईयरिंग है, एक ईयरिंग नहीं मिल रही है, फिर भी वो एक ईयरिंग रखा है, फेंक दो. चूड़ियों में रस्ट लग गया है, फेंक दो. They have to declutter all these things which they are just collecting it over the years. इनको है ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझना है. Void and desire. इन्हें समझता नहीं है. It's very thin line. मेरे लाइफ में खाली बने इसलिए मुझे ये पर्सन चाहिए या मुझे चाहत है इस पर्सन की. सो ये इन्हें समझना है. लाइक फॉर फूड, हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं या न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम उसको न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं, पेट भरने के लिए. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड डिजायर. इन्हें है ना, नाउ लाइक आई सेड, दे हैव टू, लाइक फॉर नंबर 4, दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द कमिंग. ये अगर बेड पे इनका डबल बेड है, इन्हें एक साइड ऑफ बेड सोना है. They have to leave that one place. They are creating a place for another partner to come and sleep next to them. So number 6 have to do that. अगर आपके घर में ऐसे सिंगल डियर है, सिंगल स्वान है, जो भी एनिमल का स्टैच्यू है, समथिंग है, रिमूव ऑल द सिंगल थिंग्स. सारे कपल्स में रखो, पेयर में रखो उसे. सो जस्ट डू दैट. इनके लिए जो हमें अनदर एक और एक रेमेडी जो करनी है वो ये है कि दे हैव टू फॉरगिव. वन इज फॉरगिव, वन इज लेट गो ऑफ द थिंग्स. Another thing also they have to do is because Shukra is a light in darkness. Okay, तो इन्हें इसीलिए बहुत भी अपनी लाइट नहीं फैलानी है. कुछ लाइट अपने लिए भी बचा कर रखो. So this is what number. Little selfishness. It's required. Say no, and even if somebody doesn't like it, just be with it. Let them deal with it. You have to walk out. Okay. Yeah, if you want the year to be good, and it's going to be a good year for you. For 6, yeah. Lovely. Moolank number 7. And I'm aware that it's your parents. Yes. Both of them number 7. Yeah. For them, they have to understand. For number 7 people, overthinking is not intelligence. It's a curse. ये लोग बहुत ओवरथिंक करने वाले हैं. एंड दे एक्चुअली नंबर 7 लोग करते हैं. 4 और 7 दोनों, ये दोनों नंबर है जो बहुत ओवरथिंक करते हैं. जो कल हुआ नहीं है उसके बारे में आज टेंशन लेंगे, और कल वो होने भी नहीं वाला है. हाँ, 90% टाइम वो होने भी नहीं वाला है, तो क्यों ही सोच रहे थे और नींद उड़ा रहे थे अपनी, है ना. सो ये इन्हें ओवरथिंकिंग से बचना है. फॉर देम द सॉन्ग इज मोहे रंग दो लाल फ्रॉम Mastani. हाँ, बाजीराव मस्तानी. Pajama. Actually, that movie is for number 7 people. That love, you know. So number 7 people, na, they have a karmic debt of lost love, last life का. They were not able to meet their last life में जो भी थे ना उनके, the lover. They were not able to stay together. एक तो उनका वो है karmic debt. So you know, बहुत सारे number 7 को I have met in my life, who have feelings and attraction, and a very pure feeling and attraction for that certain person who's not their spouses or their partners, but there's a way to see to it. Okay, because ज़रूरी नहीं है हमारे लाइफ में, every लाइफ में same partners हो. You can have multiple soulmates in you know, in some life maybe एक 8 जन्म साथ में हो, 7 जन्म साथ में हो. So there is another दृष्टिकोण to look at it. Anyways, so number 7 को जो कार्मिक जो है साइकिल जो है, पॉसिबिलिटी है कि इनके भी घर पे कोई खटखटाए ऑफ पास्ट लाइफ, फॉर अ क्लोजर और फॉर द बिगनिंग. देयर कुड बी अ बिगनिंग विद समबडी न्यू. यू मे मीट समबडी न्यू इन योर लाइफ. एंड इनके लिए नेक्स्ट ईयर जो है मैजिक लॉजिक है फॉर नंबर 7. बट मैजिकली राइट, लॉजिकली राइट दोनों एक साथ नहीं काम करेगा. इधर मैजिकली राइट यू विल बी और लॉजिकली राइट यू विल बी. इनको नेक्स्ट ईयर के लिए है ना, दे हैव टू मेक श्योर दे आर ट्रैवलिंग. जहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं ना, दे शुड टेक ट्रैवल एंड ट्रैवल टू अ प्लेस वेयर इट्स अ वाटर, कोई वाटर डेस्टिनेशन हो, कहीं ओशन हो, सी हो, रिवर हो, लेक हो, समवेयर देयर. एंड अगर इनको नंबर 7 को स्पेसिफिकली एक कोई ज्योतिर्लिंग नेक्स्ट ईयर अटेंड करना है, जो गो विजिट, गिव अ विजिट, और वहाँ का जो पानी होगा वहाँ पर आपको उसे बेथ करना है.
Okay. जस्ट पोर इट, कपड़ों के साथ ही जस्ट पोर इट ऑन योर सेल्फ. आपके जो भी है ना बुरी नजर आपकी कमाई पर, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल द सेम थिंग फॉर यू ऑल्सो. बुरी नजर, किसी ने किया कराया है, या मीठी नजर भी जो होती है जो पेरेंट्स की लगती है, ये सारी उतर जाएगी इफ यू गो टू एनी ऑफ द ज्योतिर्लिंग एंड टेक अ बाथ देयर. वहाँ पर वेल हो, रिवर हो, जो भी है उससे आपको बात लेना है, एंड दैट वुड बी वेरी गुड रेमेडी फॉर देम. और इनको जो है राधा कृष्ण का जाप करते, राधे कृष्णा इनको जाप करते रहे. नंबर 7. और इनको एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो विच विल वर्क वंडरफुली फॉर देम. जब ऑरेंज होता है ना सन, विच इज एट द सनसेट मोस्टली, उस टाइम पे इनको वॉक लेना है. और अगर आप ऑफिस में हो तो ऐसे कर लो, एक 5 मिनट के लिए ना जाके वो सन के पास सन को देख लो, एक 2-3 मिनट के लिए सन को देख लो. दैट ऑरेंज सन इज गोना बी मैजिकल फॉर देम. सो दिस इज अ रेमेडी फॉर नंबर 7. नंबर 8. मूलांक नंबर 8. यस, सो नंबर 8 पीपल, इनके लिए बहुत बोला जाता है. ठीक है, बहुत मतलब एक बोलते हैं ना, एक 4 के बाद जिनकी बहुत दुखाई या तो पिटाई होती है वो नंबर 8 वाले होते हैं. सो नंबर 8 वालों के लिए तो जो सॉन्ग है वो है जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है. ओके, सो नंबर 8 को 2026 स्ट्रगल को जो है उनके, टेक इट एज अ वनवास. वन क्या होता है? फॉरेस्ट. ऐसे वन में जाके कोई भी दुखी नहीं होता है. टेक अ ट्रिप एंड सी, यू विल नॉट बी सैड. ओके, सो व्हाट दे हैव टू डू, नंबर 8 पीपल, इन्हें ना, इन्होंने जो भी अपनी इमरजेंसी लीव्स बचा के रखी है या जो भी है, दे हैव टू गो ऑन अ सफारी, दे शुड गो ऑन अ माउंटेन टॉप, दे शुड गो फॉर अ रिट्रीट. दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, बिकॉज नंबर 8 वाले ऐसे होते हैं ना, इन लोगों ने बहुत किया है, इन पे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नंबर 1 एंड नंबर 8, दे बोथ आर लाइक एक सूर्य जो है वो है कहते हैं ना रोशनी के राजा, और सैटर्न जो है नंबर 8 वो अंधकार के राजा है. तो इन दोनों के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इनके पास खुद को देखने का टाइम नहीं है. और इनके पास इतने पुराने हर्ट है ना इनके हार्ट में, दे हैव टू मेक पीस विद दैट. दे हैव टू, उनको ना ग्रैटिट्यूड देना है कि वो मुझे पेन मिला ना पास्ट में, इसलिए आज मैं ऐसा बन गया हूँ, मैं निखर गया हूँ. सो दे हैव टू गिव ग्रैटिट्यूड टू देयर पास्ट पेन. नंबर 8 पीपल. नंबर 8 वालों को एक टॉर्टॉइस की रिंग पहननी है, कोई भी मेटल में पहन लो, सोना, चांदी, ब्रास, कोई भी फिंगर में पहन सकते हो, कोई भी मेटल में पहन सकते हो. और इनको इनके ईस्ट साउथ ईस्ट में, घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में इनको एक फिश टैंक रखना है. सो बेसिकली ईस्ट साउथ ईस्ट इज अ जोन ऑफ चर्निंग, एंजाइटी. तो उन्हें वहाँ एक फिश टैंक रखना है, और हो सके तो डेली इन्हें फीड करना है फिशेस को. इट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी फैंटास्टिक रेमेडी. नंबर 8 वाला एक ऐसा नंबर है ना जो अपने पेशेंस के थ्रू जनरेशनल वेल्थ कमा सकता है. तो इनको अगर वेल्दी होना है तो इन्हें पेशेंस रखना है, सब्र रखो, एंड थिंग्स विल कम टू. हाउ, जैसे हम जैसे जिम जाते हैं, एक दिन जब जाकर आते हैं सब कुछ दुखता है ना, हमें नेक्स्ट दिन नहीं जाना होता है. तो वैसे, बट देन यू डोंट हैव टू गिव अप, यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट टू सी द रिजल्ट. सो नंबर 8 को बस वही फॉलो करना है. यू हैव टू कंटिन्यू, डोंट गिव अप, यू विल सी द रिजल्ट इन 2026. इन 2026. और ये जो इनके लिए मंत्र जाप नहीं है, इनके लिए पूजा है. दे हैव टू डू माँ काली की पूजा. अगर माँ काली का मंदिर है आपके घर के आसपास तो वहां जाके घी का दिया लगा के आया करो. सो नंबर 8. और माँ काली की पूजा उस टाइम से हो रही है जब से, एक बोलते ना, एक लाइट भी क्रिएट नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट, मतलब एक रोशनी नहीं क्रिएट हुई, जब से माँ काली की पूजा होती आ रही है. सो वो अंधकार में आपके लिए उजाला लेकर आएंगे. सो डेफिनेटली माँ काली की पूजा फॉर नंबर 8 पीपल. Okay, lovely. Yes. So now the last one, मूलांक नंबर 9. Again, my favorite people, number 9 people. So 9 basically why my favorite, because it's a number of action, and हर एक नंबर को या हम सबको कुछ लाइफ में प्रूव करना है, शो करना है, अचीव करना है, हमें एक्शन की जरूरत है. सो नंबर 9 का सपोर्ट हम सबको चाहिए. ओके, नंबर 9 के लिए नेक्स्ट ईयर इज गोना बी, आपका जो गुस्सा है वो यहाँ रहने वाला है. सो मेक श्योर ये आपकी तरक्की देगा या आपकी कमजोरी बनेगा. ओके, और इस गुस्से के पीछे छुपना नहीं है. सो मेक श्योर यू कंट्रोल योर एंगर. इनके लिए जो सॉन्ग है वो है रूबरू, कंटिन्यू. रोशनी है. Yeah, that's the song for y'all. इनको ना नेक्स्ट ईयर अपनी जो भी एनर्जीज है,
they are full of energy, number 9, and they are going to be having more energy because सूर्य का जो है support रहने वाला है number 1 का. So they are going to have a lot of energy. They have to use this energy to fight their fear. They have to use this energy for weak लोगों को ऊपर लाने के लिए. Weak लोगों के लिए they have to fight their fear so that in a way when they are helping others अपने ego को भी ये control कर रहे हैं, because a combination of anger and ego will only cause them destruction. So ये दोनों चीज़ें से इनसे बचना है. इन्हें क्या करना है, अपने आप को बहुत बिजी रखना है. प्रोजेक्ट्स ले लो ऑफिस में, नया काम ले लो, अपने जो कलेश है ना उसको छोड़ दो, दूसरों को जाके हेल्प करो. उसका मतलब ये नहीं आप किसी के स्पाउस के लाइफ में टांग अड़ाओ, बट अगर वो कोई आपको लग रहा है कोई मांग रहा है आपसे मदद, प्लीज गो फॉर दैट. इन्हें है ना अपने आसपास परशुराम भगवान की पिक्चर रखना है, या तो महाराणा प्रताप सर का जो है उनका पिक्चर रखना है, तो शिवाजी महाराज का पिक्चर रखना है आसपास. इन्हें जो है जो जाप करना है, मोर देन जाप, आई वॉन्ट देम टू स्टार्ट डूइंग सूर्य जल. रोज मॉर्निंग में उठ के सूर्य जल विथ अ लिटिल पिंच ऑफ अ जैगरी उसमें ऐड करके इफ दे गिव इट, इनका जो गुस्सा, एंगर, इनका जो गुस्सा जो दिल में है ना, ये बहुत कम हो जाएगा. सूर्य जल मतलब यू हैव टू टेक एनी वेसल, इधर इट्स कॉपर और इवन इफ इट्स अ ग्लास. ओके, कांच का नहीं यूज करते हम, क्रिस्टल का वी यूज. स्टील ले लो, कॉपर वो तो बहुत बेस्ट है. जस्ट टेक दैट, fill water, add pinch of jaggery to it, and morning mein when you wake up, try to get up little early, if not very early, even 7 o'clock if you get up, 8 o'clock you get up, even then you can do it. आपको ऐसे रेस करना है हाथ, एंड सूर्य को देखते हुए आपको जल चढ़ाना है. एंड नीचे जो है वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए. मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग अ प्लांट और समथिंग देयर, या तो फिर कुछ एक वेसल रख दो और फिर वो जो पानी है वो कोई प्लांट में दे दो, सो यू आर नॉट वेस्टिंग इट ऑल्सो. सो ये सूर्य जल अगर आपने देना स्टार्ट किया, आपके अंदर का जो गुस्सा है ना, आपको बहुत पीस मिलेगा ये रेमेडी करके. सो दैट विल रियली हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. और नंबर 9 को है ना, नेक्स्ट ईयर बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है. ओके, क्योंकि 9 जस्ट खत्म हुआ है, 1 के साथ मिलेगा, तो इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है. अगर इन्होंने अपने इमोशन, गुस्सा, ईगो पे कंट्रोल किया तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं. इट विल बी अ फैंटास्टिक, मतलब इट कुड बी अ बम्पर ईयर फॉर देम फॉर नंबर 9. ओके, सो दे हैव टू रियली वर्क ऑन देयर, मतलब एक्शंस लेते जाए, सोच समझ के शांति से एक्शन लेते जाए. इट विल वर्क फॉर देम. या, एंड व्हाट इज देयर मंत्र? they have to do again Om for them, because again they need lot of peace in them. इनके अंदर इतना एंगर, इतना इनको बिठा नहीं सकते आप शांत. ये बहुत एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिव लोग होते हैं. सो इनको शांत करने के लिए, ताकि वो जब शांत स्टेट में बैठे तो राइट रॉन्ग जो है ना उसका समझ आए इन्हें. वैसे इनको राइट रॉन्ग बहुत छोटी उम्र से समझता है नंबर 9 वालों को. इफ नंबर 9 child you have at home, you cannot manipulate that child. My niece is 9. Yeah, you cannot manipulate that child. That child would know, they don't have gray in their life. कि चल ना, कर लो ना, कोई बात नहीं, आज खा लो, iPad देखते देखते खाना. No, they would not. मतलब जो बोला गया है, ये good है, ये bad है. There is no gray. So they are very particular on that. और इनको कुछ ना कुछ physical activities तो करना ही है नंबर 9 को. इन्होंने अगर, क्योंकि इनमें लाइक आई सेड बहुत एनर्जी है, दे हैव टू वेंट इट आउट समवेयर. अगर नहीं वेंट आउट करेंगे तो फिर घर वालों पे निकलेगा. Lovely. That brings us almost to the end of the pod. Yeah. मुझे ये जानना है कि अगर आपने हर किसी नंबर के लिए एक सुझाव दिया है, एक रेमेडी दिया है, बट एक ओवरऑल रेमेडी दैट विल हेल्प एनीबडी, फॉर दिस ईयर दैट पीपल शुड अप्लाई, जो अप्लाई करना चाहिए 2026 में, for them to have a peaceful, nice, successful year. I'll give you one remedy which I'm doing it since very long now, and I want really every viewers to do it. You have to start doing NWP. That's called name writing practice. आपको आपका नाम, आपका सरनेम, ओके, हिंदी में लिखना है या मराठी में लिखना है, या तो हमारी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, या उर्दू है, बंगाली है, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जी, उसमें आपको अपना नाम लिखना है. अगर हो सके तो नंबर्स भी उसमें लिखिए, अगर नहीं तो फिर इंग्लिश में लिख लो, कोई बात नहीं. यू हैव टू डू इट, यू हैव टू राइट योर नेम. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग फ्रेश हो जाओ, एक बुक और रेड पेन अपने बेड साइड पे रखो. फ्रेश होने के बाद जस्ट स्टार्ट राइटिंग. उसके नीचे अपने गोल्स लिखो. गोल्स कैसे होंगे? मनी इज कमिंग टू मी इजिली, आई एम डिजीज फ्री, आई एम डेट फ्री, I'm loan free, I'm taking at least 2 international trips with my spouse, with my family, I'm having the cream clientele,
I want to own a house, office, wherever you want to write. I have abundance of money. I want to build a hospital or whatever you want to achieve. Okay. अपने spouse के लिए लिखो, अपने बच्चों का नाम लेके लिखो, that you want to provide best education and best life to them. You want to make them independent. आपको जो भी लिखना है, may your spouse find their path, their peace. ये सारे जो भी आपके goals हैं ना life के, and these goals can change daily. मतलब अगर आपको कुछ नए डालना है तो ऐड भी कर सकते हो, बट स्टार्ट राइटिंग. बिलीव मी, अगर आपने ये संकल्प लेकर आपने ये 60 डेज कर लिया, 60 डेज आई एम गिविंग, यू विल सी द चेंजेस इन यू, द पॉजिटिविटी. और वो जो गोल्स लिख रहे हो ना, यू विल बी वेरी क्लोज टू इट. मैंने जब भी गोल्स लिखे हैं, दे हैव बीन अचीव्ड ऑलमोस्ट द सेम ईयर. सो I don't know whether there was a short or sometime I just write because I need to write something. So write being content. I want to be content. My first thing is be at peace, be content. So that first line, because that is very important. वरना हम भी करोड़पति होकर भी पाव भाजी मसाले की ऐड करते हुए भागते हुए दिखेंगे. So that content is very important. जैसे कि आपने कहा कि आपने पूरा साल स्टडी किया है, 2026 को स्टडी करने के बाद इफ यू हैव टू कंसिडर कि कौन से मूलांक के लिए इन ऑर्डर ये बहुत अच्छा साल रहेगा, तो अगर टॉप 4 मूलांक ऐसे हो जो 4th, 3rd, 2nd और 1st पोजीशन पे हो, तो कौन सा मूलांक एक्चुअली चौथे पोजीशन पे होगा? चौथे पे इट विल बी नंबर 4, बट लाइक आई सेड, नंबर 4 हैव टू इनकलकेट ऑर्गेनाइजिंग देयर थिंग्स. ऑर्गेनाइजिंग कर लिया और ओवर थिंकिंग बंद कर लिया, एंड स्टार्ट ईच डे एज आई एम गोना अचीव इट विद द थिंग. नंबर 4 के लिए इट्स अ गुड ईयर. एंड ऑल्सो नंबर 3 को अपने जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करना है विजडम के लिए. ओके एंड लर्न समथिंग न्यू. दे हैव टू लर्न समथिंग न्यू. दैट्स गोना बी नंबर 4th पोजीशन. नंबर 3rd पोजीशन पे विल बी नंबर 6 पीपल, एंड number 7. 6 and 7 will be at the number 3 position. 6 वालों को जो है, like I said, नो बोलना सीख लो. बस इतना ही कर लो, बहुत कुछ अचीव कर लोगे. और जब भी दिल टूट रहा है तो शॉपिंग स्पीयर में मत जाओ और डोंट ओवर ईट, है ना. बॉडी खराब हो जाएगी तो फिर अट्रैक्ट कैसे करोगे अच्छे लोगों को? शक्ल अच्छी चाहिए. नंबर 7 वालों को, like I said, इनको अपना ख्याल रखना है, अपने ओवर थिंकिंग बंद करना है, and think of themselves first. They will be having a good year also. Second position पे है number 5 and number 9. Number 5 वालों को again जो है वाणी अच्छी रखना है, मीठा ही बोलना है, भले ही कड़वे हो आप मेरे सामने, बट मैं मीठा ही बोलूंगी, ठीक है. और नंबर 9 वालों को जो है ईगो एंड एंगर से डील करना है, एंड इफ दे डील इट, इट्स गोना बी अ बम्पर ईयर. एंड द फर्स्ट पोजीशन पे जो है नंबर 1 है. So you know what, there is, I could say the tie between number 1, 5 and 9. They're very close. They're very 19-20, So number 1, like I said, इनका सिर्फ relationship जो है वहाँ पर दिक्कत आने वाली है. But number 1 will also do good next year. But thank you so much, and I hope that the audiences have also loved the pod, because हर किसी को मेरे जैसे इंसान, because I love reading horoscopes, I love reading, I am very much into astrology and I believe in it. And मुझे पता है कि people who believe in it sincerely, or people who may not have that amount of belief, they are also very interested in knowing कि 2026 जो आने वाला साल है वो अपने मूलांक के लिए बोलो या फिर आप अपने राशि के लिए कैसा होगा. तो मूलांक तो हमने कर लिया है इस बार, राशि भी करेंगे. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डिड दिस फॉर अस, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम होपिंग दैट इट्स हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम, एंड एवरीबडी शुड जस्ट ट्राई द रेमेडीज. एंड मे 2026 be a blessed year for all of us, especially a little more for me. Thank you. 26 is going to be a better year than 25. That is definite for all of us. इसलिए हम बहुत सारे, like I said in the beginning of the pod, हम बहुत सारा खर्चा होने वाला है. हम Indians बहुत खर्चा करने वाले हैं. Second शादियाँ बहुत होने वाली है next year. So a lot of people are going to get second chances next year. And to close it on a note, billionaires follow astrology. Yes. Millionaires follow science and everything. So if you want to be a billionaire, you have to follow astrology. Absolutely. And thank you so much for doing this. We'll keep on doing this every month. And it'll be fun. Yes, we will. Thank you, Nan. Thank you.